Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss previous year questions for placement papers. But before starting the video, I want to say if you find this video informative and helpful, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications. Without any further delay, let's get start the video. The question is the greatest number of four digits which is divisible by 15, 25, 40 and 75 is. So we will know the greatest number of four digit is 9999 and the condition is four digit greatest number which is divisible by 15, 25, 40 and 75. सो सबसे पहले 15, 25, 40 एंड 76 का एलसीएम लेंगे. देन इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 600. सो 9999 600 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए. सो यहाँ पर 9999 को 600 से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ ये जाएगा 1 पर. देन यहाँ इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 399. देन ये 9 आएगा इधर. सो यहाँ हो जाएगा 3999. देन ये जाएगा 6 पर. सो यहाँ आएगा 3600. देन इसको माइनस करेंगे. सो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 399. देन 9999 में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे. सो वी विल गेट द फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75. सो 9999 माइनस करेंगे 399. देन इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 9600. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the sum of two numbers is 55 and the HCF and LCM of these numbers are 5 and 120 respectively, then the sum of the reciprocals of the numbers is equal to. So let the numbers be x and y. Then according to the question, the sum of two numbers is 55. So x plus y is equal to 55. Then HCF and LCM of these numbers are 5 and 120. So x multiply y is equal to 5 multiply 120. देन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 600. देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y. देन इसका एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम आएगा x इंटू वाई एंड यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस एक्स. देन y प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 55. सो यहाँ रखेंगे 55 एंड x इंटू वाई का वैल्यू क्या है 600. सो यहाँ आ जाएगा 600. देन इसको 5 से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 120. सो the sum of the reciprocals of the numbers is equal to 11 upon 120. So answer of this question is option C. Next question is the product of two numbers is 9375 and the quotient when the larger one is divided by the smaller is 15. The sum of the numbers is. So let the numbers be x and y. Then the product of two numbers is 9375. So x into y is equal to 900 3075. देन यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 9375 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9375 डिवाइडेड बाय 15. देन यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा एंड ये 15 से जाएगा 625 पर एंड ये जो y है ये इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 625. देन यहाँ से y का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 25. देन
x का जो वैल्यू था वो क्या था 15 मल्टीप्लाई y, देन y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 25, देन 15 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा 375। सो x का वैल्यू आया 375 एंड y का वैल्यू आया 25। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज 375 प्लस 25। सो नंबर्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा 400। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज direction for the next question is each of the questions given below consist of a question followed by 3 statements. You have to study the question and the statements and decide which of the statement is are necessary to answer the question. The question is what is the 2-digit numbers? Statement 1 is the difference between the 2-digit numbers and the number formed by interchanging the digits is 27. Statement 2 is the difference between the 2 digits is 3. And statement 3 is the digit at units place is less than that at tens place by 3. So let the sum and unit be x and y respectively. Then with statement 1, the difference between the 2 digits number and the number formed by interchanging the digits. So 2 digits number is 10x plus y. देन इनको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या आएगा 10y प्लस एक्स एंड इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 27 है। देन इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से क्या आएगा 10x प्लस वाई एंड ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा। सो यहाँ आ जाएगा माइनस 10y एंड यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 27। देन 10x में से x माइनस होगा। सो यहाँ आ जाएगा 9x एंड y में से माइनस 10y होगा। सो यहाँ आ जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू 27। देन यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। सो 9 को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 9 यहाँ आके डिवाइड कर देगा इसको। सो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। देन with statement 2 the difference between the 2 digits is 3. so digits क्या थे x and y थे एंड इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2 एंड with the statement 3 the digit at units place is less than that at tens place by 3. so यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगा x minus y is equal to 3. this is statement 3. So we can say with all statements 1, 2 and 3 we cannot find the answer. So answer of this question is option E. Even with all 1, 2 and 3 answer cannot be given. Then next question is present ages of Sameer and Anand are in the ratio of 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is Anand's present age in year? So according to the question Sameer and Anand की एजेस का जो रेशियो है वो क्या है 5:4। देन लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद बी 5x and 4x respectively. Then according to the question 3 year hence the ratio of their ages will become 11:9. So 3 years hence age of Sameer is 5x plus 3 एंड 3 ईयर के बाद जो आनंद का एज है वो क्या हो जाएगा 4x plus 3 एंड इनका जो रेशियो है वो कितना है 11:9। देन इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा एंड जो 11 है उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। सो 9 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, यहाँ आ जाएगा 45x प्लस 9 3s are 27। देन 11 4s are 44x प्लस 11 3s are 33। देन यहाँ से 45x में से 44x माइनस हो जाएगा। सो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू
33 में से 27 माइनस होगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 6। सो x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 6। देन प्रेजेंट एज ऑफ आनंद इज 4x। सो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, सो आनंद का जो प्रेजेंट एज है वो क्या आ जाएगा 24। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Direction for the next question. Each of the questions given below consist of a statement and or a question and two statements numbered 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements is are sufficient to answer the question. Read the both statements and give answer A if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question. Give answer B if the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question. Give answer C if the data either in statement 1 or in statement 2 alone are sufficient to answer the question. Give answer D if the data even in both statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question, and give answer E if the data in both statements 1 and 2 together are not necessary to answer the question. So the question is, what is Sonia's present age? Statement 1 is Sonia's present age is 5 times Deepak present age, and statement 2 is 5 years ago her age was 25 times Deepak's age at that time. So let Sonia's age be X and Deepak's age be Y. Then with statement 1, Sonia's present age is 5 times of Deepak's age. So यहाँ से X is equal to 5 by आ जाएगा, बिकॉज सोनिया का जो प्रेजेंट एज है वो दीपक के 5 टाइम के इक्वल है। एंड यहाँ से y का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x अपॉन 5। दिस इज इक्वेशन 1। देन विद स्टेटमेंट 2, 5 years ago her age was 25 times of Deepak's age at that time. सो 5 years बिफोर सोनिया का जो एज है वो कितना हो जाएगा x माइनस 5, एंड जो दीपक का एज है वो कितना हो जाएगा y माइनस 5। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 into y minus 5, because statement 2 says 5 years ago her age was 25 times of Deepak's age at that time. सो यहाँ y का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। सो यहाँ से क्या आया x माइनस 5 इज इक्वल टू 25 y माइनस 5। देन y का जो वैल्यू था वो क्या था xy5। सो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 25। y के प्लेस पर इसका वैल्यू था x अपॉन 5, इसको पुट करेंगे -5। देन यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 25। देन इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5, एंड यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 25। देन यहाँ से ये जो 5 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो ये x माइनस 5 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 25 का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 से। सो यहाँ 25 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या आ जाएगा 25x माइनस 25 का मल्टीप्लाई 25 से होगा, सो यहाँ आ जाएगा 625। देन यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस 625 प्लस 25। सो यहाँ से माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 600। देन यहाँ x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 30। सो सोनियास एज इज 30। सो वी कैन से विद बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 we can answer this question. So answer of the question is option E, both 1 and 2 are necessary to answer the question. Next question is, if 3 raised to x minus y is equal to 27 and 3 raised to x plus y is equal to 243, then x is equal to.
सो यहाँ से 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 27। देन 27 को क्या लिख सकते हैं 3 सो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 देन यहाँ 3 और 3 बेस दोनों प्लेसेस पर सेम है, सो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। देन 3x plus y is equal to 243. Then 3x plus y and 243 को लिख सकते हैं 3/5। सो यहाँ से 3 और 3 बेस सेम है, सो इसको भी क्या लिख सकते हैं x plus y is equal to 5. This is equation 2. Then equation 1 is x minus y is equal to 3 and equation 2 is x plus y is equal to 5. इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे, सो यहाँ क्या आ जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2x इज इक्वल टू 8। देन x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some articles were bought at 6 articles for ₹5 and sold at 5 articles for ₹6 gain percentage। so 6 आर्टिकल्स को 5 रुपीज़ में परचेज किया गया है एंड जो 5 आर्टिकल्स हैं उनको 6 रुपीज़ में सोल्ड किया गया है। देन यहाँ से इस 5 और 5 का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 25 एंड जो ये 6 और 6 है इनका मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 36। देन गेन क्या आ जाएगा 36 माइनस 25 बिकॉज गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 36 एंड कॉस्ट प्राइस इज 25। सो जो गेन है वो कितना आ जाएगा 11। देन गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ गेन कितना आया 11, कॉस्ट प्राइस क्या था 25 एंड इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 25 से 100 जाएगा 4 पर एंड जो 4 और 11 है उसका होगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ से जो गेन परसेंट है वो कितना आ जाएगा 44%। So answer of this question is option D. Direction for the next question. Each of the questions given below consist of a statement and or a question and two statements numbered 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements is are sufficient to answer the question. Read the both statements and give answer 1 if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question. Give answer B if the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question. Give answer C if the data either in statement 1 or in statement 2 alone are sufficient to answer the question. Give answer D if the data even in both statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. And give answer E if the data in both statements 1 and 2 together are necessary to answer the question. So the question is, what is the length of a running train? Statement 1 is the train crosses a man in 9 seconds and statement 2 is the train crosses a 240 meters long platform as 24 seconds. So let the train length is x. Then with statement 1 the train crosses a man in 9 seconds. And we know when a train crosses a man it covers its length as a distance. So speed is equal to distance upon time. Distance is x because the train length is x and time is 9. So speed of train is x upon 9 meter per second. This is equation 1. And with statement 2 the train crosses a 240 meters long platform in 24 seconds. So we know when a train crosses a platform it covers platform and its length as a distance.
So distance of train is 240 meters plus x meters because it crosses a 240 meters long platform and time is 24 seconds. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन यहाँ से ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या आ जाएगा 240 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 24 मीटर पर सेकेंड. एंड इक्वेशन 1 में जो स्पीड आया था वो क्या था x अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड. एंड ये जो ट्रेन है ये सेम ट्रेन है. सो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही होगा. सो इक्वेशन 1 से भी स्पीड मिला एंड इक्वेशन 2 से भी स्पीड ही मिला. सो इस स्पीड को इक्वल रखेंगे. सो यहाँ से क्या आ जाएगा x अपॉन 9 इज इक्वल टू 240 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 24. देन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यहाँ आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई होगा 240 से. सो यहाँ आ जाएगा 2160 एंड 9 का मल्टीप्लाई x में होगा. सो यहाँ आ जाएगा 9x. देन ये 9x 24 से माइनस होगा. सो यहाँ क्या आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 2160. देन x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 144 मीटर पर सेकेंड. So we can say statement 1 and 2 both are required to answer the question. So answer of this question is option E. Both 1 and 2 are necessary to answer the question. Next question is, each of the questions is followed by 3 statements. You have to study the question and all the 3 statements given to decide whether any information provided in the statements is redundant and can be dispensed with while answering the given question. So question is, at what time will the train reach city X from city Y? Statement 1 is, the train crosses another train of equal length of 200 meters and running in opposite direction in 15 seconds. Statement 2 is, the train leaves city Y at 7:15 am for city X situated at a distance of 558 kilometers. And statement 3 is, the 200 meters long train crosses a signal pole in 10 seconds. So with statement 1 we get length of the train which is 200 meters. Then from statement 3 we get speed of train because speed is equal to distance upon time. एंड जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है 200 मीटर्स. एंड वी नो व्हेन अ ट्रेन पासेस अ signal pole it covers its length as a distance. So distance is 200 meters and time is 10 seconds. So speed of train is 20 meter per second. And statement 2 is, the train leaves city Y at 7:15 am for city X situated at a distance of 508 kilometer. So time is equal to क्या होता है distance upon speed. So distance कितना है 558 किलोमीटर एंड जो स्पीड है वो कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर ये जो 558 है ये दिया हुआ है किलोमीटर में एंड 20 है मीटर पर सेकेंड में. सो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा. सो यहाँ क्या हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन 5 से ये जो 20 है ये जाएगा 4 पर एंड 18 और 4 का मल्टीप्लाई होगा. सो ट्रेन का जो स्पीड है वो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर. देन जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 558 डिवाइडेड बाय 72. सो यहाँ से टाइम आएगा 31 डिवाइडेड बाय 4. सो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7/3/4 आवर्स. सो वी कैन से with statement 2 and 3 we can answer this question. So answer of the question is option D. 2 and 3 only required to answer the question. Next question is, a machine P can print 1 lakh books in 8 hours. Machine Q can print the same number of books in 10 hours while machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 am while machine P is closed at 11 am and the remaining 2 machines complete work approximately at what will the work
to print 1 lakh books be finished. So P 1 lakh प्रिंट करने में 8 आवर्स लगाता है, देन Q सेम वर्क को करने में 10 आवर्स लगाता है, एंड जो R है वो सेम वर्क को करने में 12 आवर्स लगाता है। देन 8, 10 एंड 12 का एलसीएम लेंगे, सो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। सो ये इसका 1 आवर का काम कितना आ जाएगा P का 120 डिवाइडेड बाय 8। सो P 1 आवर में 15 वर्क करेगा, देन Q 1 आवर में 120 बाय 10 वर्क करेगा, सो यहाँ से आएगा 12, एंड जो R है वो 1 आवर में 120 डिवाइडेड बाय 12 वर्क करेगा, सो R का जो 1 आवर का वर्क है वो आ जाएगा 10। देन all machines are started at 9 AM while machine P is closed at 11 AM. so machine P ने 2 आवर्स काम किया है, 1 आवर में ये 15 वर्क करती है, सो 2 आवर में कितना वर्क कर देगी 30 वर्क कंप्लीट कर देगी। सो टोटल वर्क था 120 वर्क में से 30 वर्क कंप्लीट हो चुका है, सो जो रिमेनिंग वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा 120 माइनस 30। सो यहाँ से रिमेनिंग वर्क का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 90। देन Q और R वर्क को करेंगे बिकॉज जो मशीन P है उसको क्लोज कर दिया गया है, सो Q 1 आवर में कितना वर्क करेगा 12, एंड जो R है वो 1 आवर में कितना वर्क करेगा 10। सो इन दोनों का जो वैल्यू है वो साथ में कितना आ जाएगा 12 प्लस 10 दैट मीन्स 22। सो जो Q और R हैं वो 22 के रेट से इस 90 वर्क को कंप्लीट करेंगे, सो इनको टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 45 डिवाइडेड बाय 11। सो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 5 बाय 11, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स में ये वर्क को कंप्लीट कर देंगे। सो मशीन चलना शुरू हुई थी 9 AM से, 9 AM से 4 आवर्स बाद कितना टाइम आ जाएगा 1 PM। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can finish a work in 18 days, B can do the same work in 15 days, V worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? सो A किसी वर्क को 18 डेज में करता है, सेम वर्क को B 15 डेज में करता है, देन 18 और 15 का एलसीएम लेंगे, सो इसका एलसीएम आएगा 90। देन A का 1 डे का वर्क निकालेंगे, सो क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 18, सो A का 1 डे का वर्क आ जाएगा 5, देन V का 1 डे का वर्क आएगा 90 डिवाइडेड बाय 15, सो यहाँ से B का 1 डे का वर्क आ जाएगा 6। देन V वर्कड फॉर 10 डेज, 1 डे में ये 6 वर्क करता है, सो 10 डेज में ये कितना वर्क करेगा 10 मल्टीप्लाई 6, दैट मीन्स B ने 60 वर्क कंप्लीट किया है। टोटल वर्क कितना था 90 में से 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना आएगा 30। सो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना आया 30, देन जो रिमेनिंग वर्क है उसको A करेगा, सो A 5 की रेट से इस 30 वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 30 डिवाइडेड बाय 5, सो A को ये जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने में 6 डेज लगेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete in it 10 days. In how many days will 10 women complete it? So according to the question 4 men and 6 women, मैं यहाँ पर M for men लूँगी and W for women लूँगी। तो यहाँ 4 men and 6 women किसी वर्क को कंप्लीट करने में 8 डेज लेंगे एंड सेम वर्क को कंप्लीट करने में 3 men and 7 women 10 डेज लेंगे। देन यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो यहाँ आ जाएगा 32 men प्लस आ जाएगा 8 6 जार 48, तो यहाँ आ जाएगा 48 women इज इक्वल टू आएगा 10 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 30m, देन 7 और 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 70w। देन यहाँ 32m में से 30m माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 70w में से 48w माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 22w।
देन यहाँ से एम और डब्ल्यू दैट मीन्स मैन और विमेन का जो रेशियो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मैन एंड विमेन का जो रेशियो है वो आ जाएगा 11:1। देन एम और डब्ल्यू का वैल्यू या तो इस साइड रख देंगे या इस साइड रख देंगे बिकॉज वर्क दोनों जगह पर इक्वल है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो इस एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी रखने पर वैल्यू सेम आएगा। सो मैं एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ रखती हूँ। सो 4m प्लस 6w मल्टीप्लाई बाय 8। सो एम का वैल्यू क्या था 11 एंड डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो क्या था 1। तो यहाँ m का वैल्यू 11 रखूंगी तो यहाँ आ जाएगा 44 प्लस w का जो वैल्यू है वो 1 रखूंगी तो यहाँ आ जाएगा 6। देन 44 और 6 को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा 50 एंड 50 में 8 का मल्टीप्लाई होगा। सो जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा 400। देन क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज विल 10 women कंप्लीट इट। सो 10 विमेन इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स 10w का जो वैल्यू है वो कितना आएगा। यहाँ विमेन का वैल्यू कितना आया था 1 आया था। सो यहाँ 400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1 होगा। सो यहाँ कितना आ जाएगा 40 डेज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इन 40 डेज 10 women complete the work. Next question is A and B can together finish a work in 30 days. They worked together for 20 days and then B left. After another 30 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? So A and B किसी वर्क को 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। A और B ने 20 डेज तक साथ में काम किया, देन इसके बाद B ए को छोड़कर चला गया। सो ए और बी ने 20 डेज तक कितना वर्क किया होगा 20 डिवाइडेड बाय 30 बिकॉज ए और बी का 1 डे का वर्क कितना होगा 1/30। देन 20 डेज का वर्क कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 30। सो ए और बी ने साथ में मिलकर 2/3 वर्क को फिनिश कर दिया। देन ए ने कितना वर्क किया 1/3 जो वर्क बचा उसको ए ने 20 डेज में कंप्लीट किया। सो ए ने जो टोटल वर्क है उसको कंप्लीट करने कितना टाइम लगाया होगा 20 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से ए को सेम वर्क को करने में 60 डेज लगे होंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? So according to the question 10 women can complete a work in 7 days and same work को 10 children 14 days में करते हैं। यहाँ मैं W for women लूँगी एंड C for children लूँगी। तो यहाँ पर जो सेम वर्क है उसको करने में 10 women 7 डेज लगाएंगे एंड 10 चिल्ड्रन 14 डेज लगाएंगे। देन यहाँ से क्या आ जाएगा 70 women इज इक्वल टू आ जाएगा 140 चिल्ड्रन। तो यहाँ से women एंड चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 70। देन इसको सॉल्व करेंगे तो जो women और चिल्ड्रन का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:1। देन क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज विल 5 women एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। सो यहाँ 5 women के प्लेस पर women का वैल्यू रखेंगे एंड चिल्ड्रन के प्लेस पर चिल्ड्रन का वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ 5 women का वैल्यू कितना है 2 है। सो यहाँ रखेंगे 2 प्लस 10 चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन का वैल्यू कितना है 1 है। देन इसको सॉल्व करेंगे 10 यहाँ आएगा प्लस 10 यहाँ आएगा। सो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। सो यहाँ से वर्क फाइंड करते हैं। सो वर्क फाइंड करने के लिए यहाँ W या C का वैल्यू रखना होगा। सो मैं यहाँ W का वैल्यू रखती हूँ। W का वैल्यू कितना आया था 2। सो यहाँ मैं रखूँगी 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। सो जो इसका वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। सो जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा 140 एंड 20% मिलकर इसको कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। सो जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 7 डेज में 5 women एंड 10 चिल्ड्रन मिलकर इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे।
So answer of this question is 7. Next question is X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined them till the completion of the work. How long did the work last? सो एक्स किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है एंड वाई सेम वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है। देन इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 60 आ जाएगा। देन एक्स का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 20, सो यहाँ आएगा 3 एंड जो वाई है इसका 1 डे का वर्क आएगा 60 डिवाइडेड बाय 12, सो वाई का 1 डे का वर्क आ जाएगा 5। Then according to the question, X started the work alone and then after 4 days Y joined him. That means A ने 4 दिन तक अकेले काम किया है। So A 1 डे में 3 वर्क करता है, then 4 डेज में कितना वर्क करेगा 4 × 3। So 60 में से 12 वर्क को कंप्लीट किया है किसने A ने, और जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो जाएगा 60 - 12, सो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 48। देन 48 वर्क को ए एंड बी दोनों ने कंप्लीट किया है। सो ए का वर्क है 3 एंड बी का वर्क है 5, सो दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे 5 + 3, सो 8 वर्क करेंगे ए एंड बी मिलकर। सो यहाँ से इसका टाइम कितना आ जाएगा 8 की रेट से ये 48 वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 6 days. This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, then give it a thumbs up. Also subscribe JobCut for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobCut. Thank you.